Okay, welcome back. Today I will be covering some important landmark judgments right from 1950 and I will go till 2020. तो 1950 से लेके 2020 तक जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं मोस्टली आई विल ट्राई टू कवर ऑल दोज एंड बट इट विल बी वेरी स्विफ्ट. बहुत क्विकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रेशियो ऑफ द जजमेंट्स एंड we will proceed. Okay, so without wasting your time, and I will be using both Hindi and English language. So let's start with the very first question. Which landmark case of the Honorable Supreme Court talked about the speedial trial or speedy trial? So obviously, very famous case, that is the Husnaira Khatun case, in which the Honorable Supreme Court talked about the right to speedy trial, and obviously the court recognized the right to speedy trial and right to legal aid also, legal aid services, as a basic and the essential right. And now you have to do, you have to read Article 39A. See, Article 39A, you read yourself, and then you will come to know that state shall endeavor or will always try to make an attempt to provide you free legal service aid, and as and when there is a required. Okay, so it is a duty, it is incumbent upon the state to provide you free legal aid. Okay, so this was talked about in the case of Husnaira Khatun, that speedy trial should be there and it is your right. Now now we go forward and see the next important judgment, that is the in which landmark case the Honorable Supreme Court held that Muslim women have right to maintenance. So before I proceed, let me tell you that you should read yourself the section 125 of the CRPC. Okay, and this is secular. This is actually the secular section. That what I mean to say is that irrespective of the religion, be it Hindu, Buddhist, Sikh, you are Muslim, so every person who is an aggrieved can approach to the magistrate of judicial magistrate of first class, obviously, and can seek the maintenance. Okay, so CRPC 125, if you have read then fine, and if you have not read then I am telling you that it is regarding the maintenance. Okay, and claiming the maintenance. So in the present case, that is the Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum, very important case, very important, and just a landmark case in which Honorable Supreme Court held that the Muslim woman has a right to claim the maintenance under section 125 of the CRPC, and the remedy obviously under 125, section 125 of the CRPC is available to the wife and also the divorced wife. See, divorced wife also, irrespective of the religion to which she belongs. तो ये आपको clear हो गया होगा. So quickly, actually I'm just explaining because there is no any there is no any benefit if I will go so much of the deep. We should know the crux, because question में directly आपसे पूछा जाएगा regarding the cases. Name of the case will be asked in your exam, so we are quickly doing this kind of things. Okay, now moving on to the next one. In which landmark legal case the court explained, the Honorable Supreme Court obviously explained the provisions regarding the procedure established by law. But before I proceed, पहले आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एडिशन करता हूँ आपको. देखिए, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज देयर इन अमेरिका. यूएस में आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, विच ऑल्सो सेज दैट अगर कोई लॉ बनाया भी गया है तो दैट शुड बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल. मतलब इट शुड नॉट बी अनजस्ट, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, एंड इट शुड बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू. ओके, तो यहाँ पर दैट वाज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. Okay, due process of law. But in the case of if you read the article 21, which talks about the right to life and personal liberty, means no person includes both citizen as well as non-citizens, so no person shall be deprived of his or her right to life and personal liberty except with the procedure laid down or established by the law. मतलब law बनाकर and law बनाकर आपके right को लिया जा सकता है. That means it is not an absolute right. Obviously I am telling you, it is not an absolute राइट. इवन ऑल योर फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है. फॉर अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ 19(1)(a) राइट टू फ्री, दैट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 19 आर्टिकल में हम जा रहे हैं, तो दैट इज इट इज स्टिल नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. it is subject to the आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 इसके है, ठीक है, सब्जेक्ट टू है. दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड मॉरलिटी, स्टेट obviously the state can control your rights, can put a restriction upon you.
ओके, सो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, दीज आर सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर प्रोसीजर बना के आपके राइट को लिया जा सकता है, और ये है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ हमने बोरो कहाँ से किया था, तो देखिए ये जापान से लिया गया था। अगर आज की डेट की हम बात करें और हमने रीसेंट ट्रेंड जो देखा 1970 ऑनवर्ड्स, 1970 ऑनवर्ड्स, और हम यहाँ तक आ रहे हैं टिल आई थिंक 2020 तक हम अगर कंटिन्यूसली देखें, तो अब हमें यही लगता है कि धीरे धीरे कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स आर मूविंग और टिल्टिंग देयर आइडियाज़ टूवर्ड्स द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ से अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे आ रहे हैं, और वहाँ पे इवन आर्टिकल 21 को भी बड़ा वाइडन और उसके हरिजन को एक्सपैंड किया गया है। राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, and a lot more. So these all are included in these are multifaceted rights which are implicit in article 21. So what exactly मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन कर दिया, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जजमेंट को पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर जो केस है वो है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। ये 1950 का केस है। देखिए इसमें ऑथर जो थे ऑनरेबल जस्टिस H.J. कानिया जी थे। एंड बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू दैट कि इस केस में हुआ क्या था कि पिटिशनर वाज डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इनको डिटेन कर लिया गया था, तो इन्होंने पिटीशन लगाया। आर्टिकल 32 में आप जानते हैं, रिट में आप यू गो टू डायरेक्टली टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आप जाते हैं, एंड 226 में आप हाई कोर्ट पे जाते हैं, एंड 32 में यू गो टू द वेयर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिट लगाया, रिट ऑफ हैबियस कार्पस। ऑफ हैबियस कार्पस रिट का मतलब होता है बुलवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। मतलब अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है, तो जो पर्सन जिन्होंने अरेस्ट किया है, इवन द डिटेनी और द अरेस्टी कैन बी केप्ट इवन इन द प्राइवेट कस्टडी ऑल्सो। So they have to give the explanation, the grounds upon which you are detained. तो फिर then the court will decide if there is a genuine grounds। अगर कोई genuine ground होगा तभी आपको मतलब that will be valid arrest detention, otherwise you will be released। और compensation का भी अब तो प्रावधान किया गया है। अगर आपने falsely कर रहे हैं, if you are causing the mental agony to the person, then even the penalties can be imposed upon the officer। तो what I am saying is that habeas corpus is very important। और एक बात और भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि इसमें रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। मतलब अगेन एंड अगेन यू कैन गो टू द कोर्ट्स, आप जा सकते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। रेस जुडिकाटा मतलब एक बार कोई वंस अ केस इज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ अगेन एंड अगेन, नहीं जा सकते हैं आप। लेकिन हैबियस कॉर्पस के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने क्विकली आपको ऐड ऑन किया। तो इस केस में जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, तो कंटेंशन वाज दैट कि भाई आर्टिकल 13 मेरा 19, 21 और 22 ये सारे मेरे जो हैं वॉयलेट हो रहे हैं। अगर 13 की बात करें तो 13 की 2 की बात करें कि स्टेट कोई लॉ बनाकर आपके राइट को नहीं लेगा, जो कि पार्ट 3 को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट ये बोला गया। आर्टिकल 19 के लिए भी बोला गया, जो आपको 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं। 21 में राइट एंड लाइफ एंड लिबर्टी ऑब्वियसली इज देयर, और 22 में अरेस्ट करने के 24 घंटे में आपको लीगल एड और बहुत सारे जो अदर जो आपको फॉलो करने होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है। तो कुल मिला के लेट मी टेल यू दैट कि इनका ये कंटेंशन था कि ऑल ऑफ दीज माई राइट्स आर वायलेटेड। दैट पार्ट 3 के जितने राइट है मेरा अल्ट्रा वायर्स है, एंड डिटेंशन इज इलीगल। तो ये किन्होंने बोला था? पेटिशनर थे जिनको डिटेन किया गया था, के गोपालन जी को। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इसमें जो डिसेंटिंग ओपिनियन था वो ऑनरेबल जस्टिस फजल अली, और इसमें महाजन जस्टिस जो है ऑनरेबल जस्टिस महाजन, इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। और यहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस यहाँ पे H.J. कानिया जी थे, एंड ऑथर मीन्स जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस H.J. कानिया जी, एंड पतंजलि शास्त्री जी, एंड जस्टिस मुखर्जी दास, ठीक है। तो दीज आर द जस्टिस हु एक्चुअली gave the majority judgment, and in the present case it was held that the preventive detention act 1950 का जो है with an exception of section 14 thereof did not contravene any article of the constitution। ये किसी भी आर्टिकल को ये contravene नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर हुआ क्या है। जो पर्सन A.K. गोपालन है, इनका जो अरेस्ट किया गया था, दैट वाज कोर्ट सेड दैट ये भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, दैट लॉ बना के अरेस्ट किया गया है, तो दैट इज़ वैलिड। तो इस केस में ऐसा बोल दिया गया था A.K. गोपालन में। सो इन द केस ऑफ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज ए लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इवन इफ इट डिप्राइव्स द पर्सन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर वो भले ही क्यों ना डिप्राइव करे, बट दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द प्रोसीजर हैज़ बीन गिवन बाय द लॉ, देन इट इज़ फाइन। सो दिस केस हेल्ड दैट
दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 decades वाज हैविली क्रिटिसाइज। तो इस बात को काफ़ी करीब 2 decades यानी 20 ईयर्स तक कंटिन्यूसली इसको जो है, आज डिक्टम चेंज हो चुका है, टुडेज डिक्टम टोटली चेंज। हम जब मेनका गांधी का जजमेंट करेंगे अभी तो इट विल बी क्लियर टू यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई एम टेलिंग कि 1978 में इन द मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट, राइट एंड जस्ट, फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल और ऑपरेसिव, अदरवाइज इट वुड बी नो प्रोसीजर एट ऑल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 21 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पर बोला कि भले ही लॉ क्यों ना बनाया जाए, वो राइट जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और आर्बिट्रेरी, देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इन दैट, नहीं होना चाहिए। और वो जो है आपको दैट शुड नॉट इवन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे कि ऑडी आर्ट्रम पार्ट्रम हो गया, स्पीकिंग ऑर्डर्स हो गए, रीजनड ऑर्डर्स हो गए, एंड नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, दिस ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स विल कम इनटू दिस पार्ट। ओके, सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग द expression procedure established by law under article 21, honorable supreme court held that the procedure in article 21 has to be fair, just and reasonable होना चाहिए और वो oppressive या arbitrary नहीं होना चाहिए। A procedure established by law is the same as the due process law as interpreted by the American Constitution। हालांकि ये बात यहाँ लिखी ज़रूर है, लेकिन आपको जब ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप ये पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ क्लियर होगा कि हमने अभी यूएस का जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, धीरे धीरे हम वहाँ पर टिल्ट कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से जो रिसेंट जजमेंट्स हैं हमें ये एक्सप्रेस कर रही हैं कि नाउ द कोर्ट्स आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू, इसे आप बोल सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एक पार्ट बोल सकते हैं, वन फैसेट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म बोल सकते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि लॉ जो है इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए और ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, एंड लॉट मोर थिंग्स आर देयर। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। In which landmark case the Honorable Supreme Court held that speedy trial is implicit under Article 21 as fundamental right? See, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल। तो अभी हमने इस केस को कर लिया है, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। इन द केस ऑफ हुस्नैरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, 1980 का केस है, तो इसी में हेल्ड हुआ था। द स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीइंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ऑब्वियसली एज वी हैव डन and obviously this case pertained to the state of under trial prisoners in the Bihar। याद रखिएगा, under trial prisoners in the Bihar के बारे में ये केस था और बहुत साल से वो अंदर जेल में थे। सो इस केस में उनको बोला गया, इट वॉज हेल्ड दैट इफ एनी अक्यूज्ड इज नॉट एबल टू अफोर्ड लीगल सर्विस ऑल्सो देन ही हैज़ राइट टू फ्री लीगल एड एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई ऐसा अक्यूज्ड है जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियली साउंड नहीं है एंड ही इज़ नॉट इन ए स्टेट टू कम अप विद सम यू नो लॉयर और एडवोकेट और वकील और यू कैन से, सो दे हैव टू बी प्रोवाइडेड द लीगल एड एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड सो, एंड द कॉस्ट हैज़ टू बी bear by the state, to be bore by the state। okay, so this is another important thing। और आर्टिकल 39 है, आप पढ़ के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 39 आप खुद से पढ़िएगा संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ये तो हो गया आपका, यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्विकली मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा मालीमत कमेटी के बारे में मैं बता देता हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड द मालीमत कमेटी एक्चुअली recommended the system of plea bargaining। Plea bargaining should be introduced in the Indian criminal justice system to facilitate the speedy trial। एक और ये यहाँ पर एड ऑन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई एक मालीमत कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया कि भाई कैसे स्पीडी ट्रायल होगा, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं, तो प्ली बार्गेनिंग इज अनदर ऑप्शन, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप देखिए 21A में आप देखेंगे ना, आप जब CRPC में अगर आप चेक कर पाएंगे, इफ़ यू हैव द बेयर एक्ट ओपन इट एंड चेक आउट देयर। सो यहाँ पर इस चैप्टर को ऐड ऑन किया गया था, तो यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की बात कही गई मालीमत कमेटी से, ठीक है, कि रिड्यूस टू बर्डन ऑफ द कोर्ट को कम करने के लिए, इवन द स्पीडियल ट्रायल के लिए, स्पीडियल डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केसेस के लिए। इसके वजह से हमारे पास क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आया 2003 में, इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड बाद में धीरे धीरे उसी के उसको इनकॉर्पोरेट किया गया रिगार्डिंग द प्ली बार्गेन। तो CRPC में चैप्टर चेक करिएगा अगर है तो आपके पास, चैप्टर नंबर XXIA दैट इज़ 21A आई सपोज, तो 21A आप चेक करें, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 का, एंड विच इज़ एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट
प्रेस्क्राइब्ड अप टू द पीरियड, 7 साल तक की अगर सजा है किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें 7 साल की सजा है, एंड डज नॉट अप्लाई वेयर द ऑफेंस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक, ऑब्वियसली देखिए एक तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, जो मॉनिटरी जो होते हैं ना, जैसे कि मनी मैटर्स जो होते हैं, जैसे कि मनी मैटर्स, ओके आप समझ गए होंगे, बैंक्स के पैसों में जैसे कि कुछ हो जाना, बैंक से जुड़ा या इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी से जुड़ा कोई मैटर, तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, वाइट कॉलर क्राइम जिन्हें बोलते हैं, इनमें एप्लीकेबल नहीं है। 7 साल से नीचे वाले में एप्लीकेबल है, अबव वाले में एप्लीकेबल नहीं है। अप टू मतलब 7 साल है, 7 साल से नीचे वालों में एप्लीकेबल है, बट नॉट अबव द 7 ईयर्स। और सोशियो इकोनॉमी में नहीं लगेगा ये ऑफेंसेस में। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स अगर बच्चा है, उनके अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस कर दिया है, इवन वुमेन्स के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, तो याद रखना है आपको, ये चारों केसेस याद रखने होंगे आपको कि वहाँ पर ये नहीं लगता प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना, आप क्विकली वांट टू सेटल द मैटर, सो यू आर जस्ट बार्गेन करना, इट्स ए बार्गेनिंग, ओके, सो यू आर बार्गेनिंग। तो ये यहाँ पे ये भी हमने ऐड ऑन कर लिया। अब एक बात और देखिए, एक ऑन अनदर लैंडमार्क केस आई वांट टू ऐड दैट शीला बसरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वेयर द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ द एक्यूज्ड हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, द चार्ज और द कन्विक्शन एज द केस में बी मस्ट बी क्वेश्चन्ड। अगर कोई भी जो है इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट्स ऑब्जर्व दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, अगर इन्फ्रिंज किया जाता है, देन द कन्विक्शन कैन बी क्वेश्चन्ड ऑल्सो।